Don't you think that you're being rather tough on Manoj Muntashir? He's just a dialogue writer. I am also. You are saying now that why am I being so hard on Manoj Muntashir? I have no sympathies for that man. Is because he really took sentiments for granted. आपने तो उनकी इमेज एंग्री हनुमान की बना के रख दी है रास्ते पे. तो उसी रास्ते पर गाड़ी पर चलते हुए एंग्री हनुमान के स्टिकर पे इन्होंने वैसे डायलॉग चिपका दिए. तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, जिससे फिर लोग को बहुत गुस्सा आया. हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स कहते हम रामानंद सागर की रामायण टीवी पर देखते थे, हमें अच्छा लगता था बिकॉज दिस वॉज बियॉन्ड रिलीजन. रामायण इज बिगर देन जस्ट वन रिलीजन. It is the story of India. It is the story of good versus bad. Your Manoj Muntashir is saying that ये रामायण नहीं है. His defense is अब तो ये तो आदिपुरुष है. हम तो इंस्पायर हुए थे. पहले 1% हमने चेंज नहीं किया. आपको पूरी आस्था मिलेगी. मैंने चप्पल खोल के लिखा है और अब बोल रहा है कि ये तो इंस्पायर्ड है. आप मुझे ब्लेम ही नहीं कर सकते हैं. That is the sort of double talk that people are seeing is as completely unacceptable. Hi, this is Akash Banerjee. You're watching Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. आकाश बैनर्जी, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा. कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक. आपके कार्यक्रम देखते रहता हूँ. एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है वो सब देख रहा हूँ. बड़े मजे आ रहे हैं. But I must tell you, as मैंने पहले भी मैंने आपसे कहा है कि that you're extremely popular here in Canada and US, and I've seen your journey and it's so fascinating. I mean, you've crossed like 3 million subscribers, and the credibility, the way it is rising is truly wonderful. So congratulations for that. Thank you so much. One just hopes that there is more space for reason and logic. That's what we hope for. Amazing. Alright, मैंने आपके 2 वीडियोस मैंने आपके देखे आदिपुरुष के ऊपर, और मेरे जहन में जो पहला सवाल आया, मैंने सोचा कि that don't you think that you're being rather tough on Manoj Muntashir? He's just a dialogue writer. Yeah. The only thing is that had the movie, this is a traditional problem. Had the movie been a super hit, then Manoj Muntashir would have gone into all television studios and claimed that he is the reason why the movie is such a super hit because of his intellectualism, because of his dialogue writing. And as a matter of fact, you see, yeah, this is exactly how life will work. You go ahead, you make tall claims, then your claims fall flat. And instead of saying sorry, you will think that you can escape your way by tall words, by using religion, using religion as a defense. So I think today why India is so angry with Manoj Muntashir is not only because of what happened in Adipurush, but because of his sheer arrogance that came out after the debacle that happened and after those dialogues that happened, to the extent, and I didn't even mention that in my episode because that happened after the episode came out. He said, Bhagwan Hanuman is not a god. We have made him a god. These sort of statements are not acceptable. I'm sorry. You cannot use my religion, A, for self-promotion, and B, when you have managed to hurt sentiments, which is very obvious, you just say a sorry. It's a simple question of a sorry, which I find very surprising that somebody who calls himself so educated can't bring him to say that, okay, maybe I got it wrong. Simple. Mm-hmm. All right. Now, but don't you think that जिस तरीके की उनको physically उनको harm पहुंचाने की जिस तरीके की press conferences हो रहे हैं, और दूसरा सवाल मेरा ये था कि that ये press conferences हम काफी सालों से देख रहे हैं. So do you feel somehow that maybe ये सब पहले ही शायद इसको रोकना चाहिए था? So, मैंने अपने एपिसोड में भी ये बात कहा था कि any sort of a physical assault or physical harm or physical threat is not acceptable. And we have made it acceptable also. पद्मावत से लेकर जब नाक कान कटने वाले थे to Pathan, we've seen these physical threats, we've seen attacks on theaters. अभी तो vandalism in theaters नहीं हुआ है, लेकिन अभी एक और खबर आई थी कि भाई I think अयोध्या में screening was stopped. So that is not acceptable. But I think that agar aap ye baat samajh jate that this is not okay, what we have gone ahead and done. You see, it's a very simple thing. And I do not know if the makers understand this or not. I think people are, of course, understanding it. When you creative liberty, मैं सबसे ज्यादा मानता हूं creative liberty को.
लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी आप तब ले सकते हो जब आप एक सब्जेक्ट को समझते हो, खासकर कि रामायण जैसी एक गाथा, एक एपिक। आप नहीं कह सकते हो कि अच्छा मैं क्रिएटिव लिबर्टी लेता हूं, मैं इसको तोड़ मरोड़ दूंगा, मैं इस डायलॉग को पेडेस्ट्रियन बना दूंगा, स्ट्रीट लेवल बना दूंगा, एंड लोग तो वैसे नहीं आएंगे। लोग तो आएंगे बिकॉज 600 crores you don't spend without knowing that people will definitely come into the hall. It's a massive investment, the most expensive movie, arguably. You would know if I'm wrong. Arguably the most expensive movie ever made. And then you go ahead and reduce it to some sort of action Marvel movie. Zero acting, zero GFX. Dialogues is just one part of this whole massive fiasco. डायलॉग्स की वजह से मनोज मुंतशिर इसलिए आ रहे हैं बिकॉज यू डोंट सी द एक्टर्स गोइंग अहेड एंड सेइंग दैट हमने तो अपना बेस्ट काम किया है और जो हमारे काम के ऊपर सवाल करेगा वो रावण भक्त है। इट इज दिस मैन एंड हिज एरोगेंस जो इंडियन टेलीविजन चैनल पर जा जाकर ये चीख चीख कर चिल्ला रहा है दैट अगर आपको इतनी तकलीफ है, इसका मतलब है कि आपको राम से ईर्ष्या है। जय श्री राम का नारा इज अ पायस नारा। जय श्री राम का नारा एक दिल का नारा होता है। उसको जाकर आप, पहले से ही हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में इस्तेमाल हो रहा है, अब उसको जाकर आप मूवीज में इस्तेमाल कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक पायस हिंदू, एक हिंदू जिसमें आस्था है, आई एम नॉट इवन सेइंग बिलीवर एंड ऑल दैट स्टफ, रामायण इज मच 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 बियॉन्ड। मेरे कमेंट सेक्शन पे अगर आप जाके देखोगे, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स कहते हैं हम रामानंद सागर की रामायण टीवी पर देखते थे, हमें अच्छा लगता था बिकॉज दिस वॉज बियॉन्ड रिलीजन। रामायण इज बिगर देन जस्ट वन रिलीजन। इट इज द स्टोरी ऑफ इंडिया, इट इज द स्टोरी ऑफ गुड वर्सेस बैड। उसको आपने रिड्यूस कर दिया, उसको आपने पेडेस्ट्रियन बना दिया, ये सो दैट इट वन कैन कम्युनिकेट। तो जैसे मैंने अपने एपिसोड में बोला था, फिर एक्सो एक्सो भी लगा देते, इमोजीज भी लगा देते, ब्रो भी लगा देते। So this sort of kiddish explanation, this sort of arrogance that came out on television, I think that is why the anger against Manoj Muntashir in specific, and of course against the makers of Adipurush. Now I just hope very quickly उन लोग को अपने dialogues, उन्होंने बोला है that they will change some of the dialogues. Maybe some of the damage can be undone, but you can't do the other damage that is already done. But some of the damage, so a little less अहंकार। हम रावण की बात करते हैं अहंकार, थोड़ा सा अगर मेकर्स भी अपना अहंकार कम करके थोड़ा डायलॉग चेंज करें, मे बी या। Now, but have you seen such sort of resistance for a movie ever? When have we not seen such a resistance for a big movie? But the only difference मेरे ख्याल से resistance between movies being manufactured and being genuine. हम लोग यहाँ इंडिया में बार बार इसी बात को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जब ब्रह्मास्त्र के खिलाफ बॉयकॉट होता है, जब पठान के खिलाफ बॉयकॉट होता है, कितना जेन्युइन होता है और कितना मैन्युफैक्चर्ड होता है। और काफी हद तक यू सी some publications, some Twitter handles outraging against it, encouraging people, trying to change the discourse. What I find very fascinating over Adipurush is that मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बैकलैश होगा। मेरे ख्याल से इतना बड़ा बैकलैश कांट बी मैन्युफैक्चर्ड ऑल्सो, और मेरे ख्याल से कोई मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्री एम्प्लॉयड भी नहीं है। ये बैकलैश जेन्युइन है। और पिक्चर देखने के बाद मैंने एक तो लेट मी जस्ट मेक वन पॉइंट वेरी क्लियर। आई वांटेड आदिपुरुष टू वर्क। यू नो व्हाई? बिकॉज आदिपुरुष एक चीज तो कम से कम नहीं करता है जो कि आज की कम्युनल पिक्चर्स क्लियरली करने की कोशिश करती हैं, कि एक रिलीजियस पोलराइजेशन कर दें, अस वर्सेस देम कर दें। That Adipurush does not actively. I know there is this whole Ravan and the fact that the Khilji and Ravan equation that is being drawn. But otherwise, given the recent movies that we have seen, कम से कम वो तो नहीं करता था। तो मैंने कहा कि यार अपने धर्म की बात हो रही है, ग्लोरी ऑफ द पास्ट की बात हो रही है, एपिक टेल हैज बीन ब्रॉट इनटू द हॉल्स। बॉलीवुड, आई फॉर वन वांट बॉलीवुड कि भैया यू लर्न योर लेसन्स, यू डू अ गुड जॉब। सो आई थॉट Adipurush might be an answer to RRR. I thought Adipurush should work because at least it is spreading a message of
a religion without victimizing the other. So when this sort of backlash happened, I was honestly taken aback. And that goes to show, and this is very important, Faridun, that goes to show that एक पिक्चर बनाने के लिए या तो आपने धर्म को रिस्पेक्ट नहीं किया, या तो आपने लोगों को इडियट समझा. And there lies the crux. People, the backlash, is disappointment. It is more than anger. It is the fact that people have felt cheated. That the biggest studios, biggest money, biggest stars, apparently biggest dialogue writer, let's not even get into that. But it shows the bankruptcy. Well, then you have worked in the industry. How can such a lot of money have been spent and people are wondering, किसी को समझ में नहीं आया? Of course, the backlash had already started at the trailer point only. But what can you change after the trailer? So it is more than anger. It is disappointment. It is heartbreak. And so I think while we have seen boycotts, trends, and IT cell campaigns, this sort of mass disappointment, and which you understand the trade better. I'm sure you're following the numbers. But from a massive initial booking, now we are seeing a sudden crash. Why? Alright. आपने जिक्र किया है कि आई थिंक जो गिमिक्स हैं कि हनुमान जी के लिए एक सीट रखी जा रही है सिनेमा हॉल्स में. मे बी आई थिंक नॉट दैट वाज नॉट नीडेड. आई थिंक कहीं मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात बोला था. मुझे एक ही चीज लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें इतने तो गधे नहीं हो सकते इन लोग कि इनको मालूम नहीं था कि ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है. आई थिंक वाइल मेकिंग द मूवी या ट्रेलर रिलीज होने के बाद इनको बात समझ में आ गई थी कि ये बहुत ही सब स्टैंडर्ड मूवी है. ना इसमें एक्टिंग है, ना इसमें स्टोरी टेलिंग है अच्छी तरीके से, डिटेल्स हैव बीन स्किप्ड आउट, और डायलॉग्स तो है ही घटिया. इन्होंने कहा कि यार पिक्चर तो अच्छी नहीं बनी है, 600 करोड़ तो कम से कम वापस कमाने हैं. लेट अस प्ले द कार्ड, द इमोशनल कार्ड एंड द रिलीजियस कार्ड. और यही चीज इन पर बैकफायर कर रही है, क्योंकि इस बात पर कोई डिबेट तो नहीं कर सकता है. लोगों की आस्था तो है ही है. तो उन लोगों ने कहा कि अब बहुत अच्छी बात है, भगवान हनुमान के लिए एक सीट हम रिजर्व कर रहे हैं, देखिए कितनी आस्था है. और अब वही लोग गाली बक रहे हैं इस पिक्चर को, और वही लोग कह रहे हैं कि भैया भगवान हनुमान को ये पिक्चर मत दिखाना, नहीं तो गदा देकर तुम्हें ही मारेंगे. और मैंने उल्टा अपमान तो होगा ही अपना सिनेमा हॉल में बैठ के. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू कैन यूज रिलीजन टू ड्रॉ पीपल टू अ हॉल. और वो चप्पल बाहर खोल के भी आएंगे हॉल के अंदर, क्योंकि आप सबस्टैंडर्ड भी पिक्चर बना लो, भगवान राम की बात है यार, आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, आएंगे. लेकिन आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो. You can't have it both ways. And that is where this whole thing went wrong. You thought, I will use Bhagwan Shri Ram's naam. You thought कि मैं राम सिया राम का नारा लगाकर, गाने बजाकर लोगों को हॉल के अंदर ले आऊंगा और फिर उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करूंगा. ये एक्सेप्टेबल नहीं है. और ये अच्छा लगा देखकर कि कहीं ना कहीं लोगों ने रेड लाइन एक ड्रॉ किया है कि धर्म के नाम पर आप पिक्चर बना लो, धर्म के नाम पर आप पैसा पीट लो, लेकिन धर्म का अपमान हम अब नहीं करने देंगे आपको. यू कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड लाइक दिस, व्हिच इज गुड टू नो. आई जस्ट होप दैट पीपल वेक अप टू दिस फैक्ट कि इंडिया में किस तरीके से दिस हैज बीन गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. कहीं ना कहीं तो एक फुल स्टॉप लगना होगा. आदिपुरुष से कम ये फुल स्टॉप तो लगा है कि नो, यू कैन नॉट डू दिस टू अस जस्ट बाय एक्सप्लॉइटिंग आवर सेंटिमेंट्स. ओके. ना मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तरन आदर्श साहब का, तो मैंने बहुत साल उनके साथ में काम किया है. बहुत ही कूल एंड काम पर्सनालिटी है, लेकिन आई सॉ हिम लाइक लिटरली एंग्री. एंड ही वाज सेइंग दैट दीस आर द सॉर्ट ऑफ फिल्म्स की इसकी वजह से बॉलीवुड का जो बदनामी होती है वो इन फिल्मों की वजह से होती है. और उन्होंने एक जिक्र किया जय संतोषी माँ का. आई थिंक लेट 70s में फिल्म आई थी, और आई थिंक लोग थालियां लेकर जाते थे फिल्म देखने के लिए. और कोई बीएफएक्स नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन फिल्म बनाई एक, आई थिंक मेरे ख्याल से एक अच्छी नियत के साथ में थी, और वो बहुत बहुत पिक्चर चली थी. वो इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट था आकाश? So it's a very, very good question. I mean, I'm so excited to answer this. I'll tell you.
मैंने पिछले हफ्ते 2 पिक्चरें देखी, आदिपुरुष एंड फास्ट एक्स. One for family reasons and one for obviously the reasons of putting a review on Deshbhakt. What I found very similar is, I do not know if you've seen Fast X or not, but I am a great Fast and the Furious fan. और मैं अपना सर पकड़ा हुआ था कि सबसे बड़े बजट अगेन हॉलीवुड में बनने वाली ये पिक्चर सुपरस्टार, कोई सोल नहीं है, खत्म हो चुका है, मार दिया है. एंड दैट सेम सेंटिमेंट आई हैड व्हाइल वॉचिंग आदिपुरुष. पिक्चर में कोई सोल नहीं है. अगर यही पिक्चर आराम से बना देते, विदाउट वीएफएक्स बना देते, लेकिन एक्टिंग में कोई तेज होता, फीलिंग्स होती, अगर थोड़ा सा संस्कार का ध्यान रखा गया होता, और शेडी आपने ग्राफिक्स और मॉर्डोर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और प्लैनेट ऑफ द एप्स बनाने की कोशिश ना की होती, दिस मूवी वुड हैव गॉट 1000 करोड़ आराम से. You have worked with Taran Adarsh. I have seen Taran Adarsh's reviews. They are always largely balanced. मैंने कभी भी शायद तरन आदर्श को इतने मेगा बजट मूवी में फर्स्ट डे पर 1 स्टार या 1.5 स्टार और सीधे सीधे डिसअपॉइंटिंग नहीं देखा है. Why? Is because even for a person, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि भैया मैं रोज जाता हूं और मंदिर में माथा टेकता हूं, लेकिन फॉर एन एवरेज पर्सन they have managed to rile up the sentiments of an average Hindu, which is amazing. कि भैया आप इतना खराब कर चुके हो कि जो मैं बता रहा हूं, स्पेसिफिक्स पर भी अगर आप मत जाओ, एक एवरेज पर्सन भी बोलेगा कि यार ये क्या किया है, और एवरीबडी इज आस्किंग कि वो 600 करोड़ रुपए कहां गए हैं. So I completely understand what Taran Adarsh is saying is that ideally this movie should have had people कि भैया चप्पल उतार के जा रहे हैं, थाली लेकर जा रहे हैं. और मेरे ख्याल से जो मेकर्स हैं उन्होंने कोशिश भी यही किया था. ऐसे ऐसे कुछ पिक्चर्स भी वायरल करने की कोशिश किया था कि लोग थाली लेके जा रहे हैं, हनुमान जी की प्रतिमा लेकर जा रहे हैं. बट इट कांट वर्क इफ यू डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट. एंड दैट इज हाउ बैड इट इज. अरे लोग एक बात बताओ, 35 years अगो रामानंद सागर का रामायण लोग याद कर रहे हैं. उस समय ना ग्राफिक्स था, बहुत पुअर विजुअल्स थे, लेकिन उसको याद कर रहे हैं कि भैया वो हमें वापस लौटा दो. जापानीज एनिमी याद कर रहे हैं कि भैया वो वाला रावण अच्छा था, कार्टून रावण अच्छा था तुम्हारे रावण से. The only explanation can be is that they took it for granted. हम लोग तो डरते हैं कि कोई कुछ गलत बात ना निकल जाए, जहां तक रिलीजन की बात हो, आस्था की बात हो, सेंटिमेंट्स की बात हो, और आपने 600 करोड़ की ये बनाई. आई थिंक दैट इज वेयर पीपल आर वेरी वेरी एंग्री. डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने डायलॉग्स लिखे थे महाभारत के लिए, एंड बी आर चोपड़ा. आज भी जब महाभारत की हम बात करते हैं तो वही सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट आता है, जबकि और भी बने. और वो इतने कमाल के डायलॉग्स थे कि दैट आज भी आई थिंक लोगों को याद है. सो आई थिंक एक डायलॉग राइटर मेरे ख्याल से शायद वो भी थे, और कमाल की उन्होंने बहुत ही बैलेंस्ड उन्होंने चीजें लिखी जो कि आज तक लोग याद करते हैं शायद. So the point that I'm trying to make is a lot of people in the comment section, और मुझे बड़ा खराब लग रहा था जब मैं ये पढ़ रहा था कि उन्होंने बोला कि अगर डायलॉग राइटर का सरनेम कुछ और होता, अगर सोच लो ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बनाई होती, आमिर खान प्रोडक्शंस इसमें इन्वॉल्व होता, तब सिनेमा हॉल थिएटर्स की क्या हालत होती, तब देश में क्या सिचुएशन होता, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाता. सो फ्रॉम अ कल्चरल सिंथेसिस टू, चलिए आपने ये सब भी नहीं किया, आपने बहुत ध्यान रखा कौन बना रहा है, ओम राउत बना रहा है, इज द डायरेक्टर. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इतना सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी जब आप ये सिचुएशन पे आते हो, और इसके पीछे एक और रीजन भी है. यू नो, I am also, you are saying now that why am I being so hard on Manoj Muntashir? I have no sympathies for that man, is because he really took sentiments for granted. लेकिन मनोज मुंतशिर ने भी सोचा होगा कि यार देखो इन लोग तो कर ही रहे हैं, एंग्री हनुमान का पोस्टर तो हर गाड़ी पे लगा हुआ है. तो लॉट ऑफ कमेंट्स वर लाइक, अच्छा तुमने अपने रिव्यू में कहा था कि हनुमान जी वैदिक स्कॉलर थे. मैंने कहा भाई ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो कोई एक्सपर्ट लेवल आपको नॉलेज भी नहीं चाहिए रामायण में टू नो दैट बिसाइड्स हिम बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड हिज इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ, ही वाज अ वैदिक स्कॉलर. लेकिन आपने तो उनकी इमेज एंग्री हनुमान की बना के रख दी है रास्ते पे.
तो उसी रास्ते पर गाड़ी पर चलते हुए एंग्री हनुमान के स्टिकर पे इन्होंने वैसे डायलॉग चिपका दिए, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, जिससे फिर लोग को बहुत गुस्सा आया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब आप हनुमान को एंग्री हनुमान बना रहे थे, यू वर रिड्यूसिंग हिम टू अ कार स्टिकर, तब लोगों की आस्थाओं को इफेक्ट नहीं हुआ था? हमने एक हैप्पी हनुमान का फिर टी शर्ट बनवाया था टू काउंटर दैट एंग्री हनुमान। पीपल डिडंट people didn't want to buy it, people didn't see a reason in it उस समय। अब उनको लग रहा है कि यार ये तो मजाक बनाया जा रहा है हमारे भगवान का। So from accepting multiple point of views to mocking your own god, but maybe now that we wake up and say that हाँ यार, इज्जत धर्म के नाम से नहीं आती है, इज्जत तो रामायण की बहुत सारे लोग करते हैं अक्रॉस रिलीजन, एंड दैट इज द रियल पावर ऑफ रामायण, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। एंड मैं बता रहा हूं, 10,000 कमेंट्स है, आप जाके कहीं भी स्क्रॉल करके देख लो, आपको एक थ्रेड मिलेगा कि रामायण हमें भी पसंद है, एंड पीपल आर सेइंग चर्च से हम वापस जल्दी आ जाते थे रामायण देखने। इससे ज्यादा पावर स्टेटमेंट क्या हो सकता है भाई? सो आई जस्ट होप दैट रामायण कम्स बैक एंड दिस वन इज फॉरगॉटन जितनी जल्दी हो सके। लेकिन हाँ, रिमेंबर नाउ योर मनोज मुंतशिर इज सेइंग दैट ये रामायण नहीं है। हिज डिफेंस इज, अब तो ये तो आदिपुरुष है, हम तो इंस्पायर हुए थे, पहले 1% हमने चेंज नहीं किया, आपको पूरी आस्था मिलेगी, मैंने चप्पल खोल के लिखा है, और अब बोल रहा है कि ये तो इंस्पायर्ड है, आप मुझे ब्लेम ही नहीं कर सकते हैं। दैट इज द सॉर्ट ऑफ डबल टॉक दैट पीपल आर सीइंग इज as completely unacceptable.